हम पढ़ेंगे नंबर्स 5 चैप्टर 6 चैप्टर, गिनती की पुस्तक 5 अध्याय 6 अध्याय। हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। रिबांति खब्बाहा से के बरकसी हांतु को बुरुखुसा रिदाना माखासे हेकेम्बो ओहशरा खासी हिल्लर बहा खासी अंदुरो det uhlaraha detkin behkabaha sharakasi hantu koburukosa zere behese ke berakatina rabaha kasiandura ridana makase ke bekatina rabahantara hasa रिदान के बहुश कर खसी को बहुता लरबहा खसी अंदुरा। परमेश्वर तेरा वचन हमारे जहन में खुलना है और तेरे वचन की गहरी दोस्ती में हमको उतार खुदा परमेश्वर। हम चाहते हैं खुदा परमेश्वर तेरे सच्चाई का सामना करने दे, हमको तेरे सच्चाई को हम पिता सामना करने दे, तेरे सच्चाई की टक्कर हम लेना चाहते हैं खुदा, ताकि हम सच्चाई को पिता हमारे अंदर ले सके खुदा परमेश्वर, ताकि सच्चाई हमारे भ्रम को तोड़ सके, ताकि सच्चाई तेरा वचन जो सच्चा है खुदा वो हमारे पिता नशा को तोड़ सके। तेरा वचन हमारे अंदर पिता जो पिता धुंधला कर रखी गई ऐसी कोई अवस्थाएं है जिसके कारण शत्रु का पिता हम पर जोर चलता है, उस अवस्था को टक्कर लगा सके। तेरा वचन काम करने दे पिता परमेश्वर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। The unclean to be removed out of the camp. Restitution enjoyed. Hallowed things belong to the priest. The trial of jealousy. The Lord spake unto Moses, saying, Command the children of Israel that they put out of the camp every leper and every one that hath an issue, and whosoever is defiled by the dead, both male and female, shall ye put out without the camp, shall ye put them, that they defile not their camps in the midst whereof I dwell. And the children of Israel did so, and put them out without the camp, as the Lord spake unto Moses, so did the children of Israel. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, when a man or woman shall commit any sin that men commit, to do a trespass against the Lord, and that person be guilty, then they shall confess their sin which they have done, and he shall recompense his trespass with the principal thereof, and add unto it the fifth part thereof, and give it unto him against whom he had trespassed. But if the man have no kinsman man to recompense the trespass unto, let the trespass be recompensed unto the Lord, even to the priest, beside the ram of the atonement, whereby an atonement shall be made for him. And every offering of all the holy things of the children of Israel, which they bring unto the priest, shall be his. And every man's hallowed things shall be his. Whatsoever any man giveth the priest, it shall be his. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man's wife go aside and commit a trespass against him, and a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, and be kept close, and she be defiled, and there be no witness against her, neither she be taken with the manner, and the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled, or if the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be not defiled, then shall the man bring his wife unto the priest, and he shall bring her offering for her, the 10th part of an ephah of barley meal,
He shall pour no oil upon it, nor put a frank incense thereon, for it is an offering of jealousy, an offering of a memorial, bringing iniquity to remembrance. And the priest shall bring her near and set her before the Lord, and the priest shall take holy water in an earthen vessel, and of the dust that is in the floor of the tabernacle the priest shall take and put it into the water, and the priest shall set the woman before the Lord, and uncover the woman's head, and put the offering of a memorial in her hands, which is the jealousy offering. And the priest shall have in his hand the bitter water that causeth the curse. And the priest shall charge her by an oath, and say unto the woman, If no man have lain with thee, and if thou hast not gone aside to uncleanness with another instead of thy husband, be thou free from this bitter water that caused the curse. But if thou hast gone aside to another instead of thy husband, and if thy be defiled, and some man have lain with thee beside thine husband, then the priest shall charge the woman with an oath of cursing, and the priest shall say unto the woman, The Lord make thee a curse and an oath among thy people, when the Lord doeth make thy thigh to rot and thy belly to swell. And this water that causeth the curse shall go into thy bowels, to make thy belly to swell and thy thigh to rot. And the woman shall say, Amen, Amen. And the priest shall write these curses in a book, and he shall blot them out with the bitter water, and he shall cause the woman to drink the bitter water that causeth the curse, and the water that causeth the curse shall enter into her and become bitter. Then the priest shall take the jealousy offering out of the woman's hand, and shall wave the offering before the Lord, and offer it upon the altar. And the priest shall take an handful of the offering, even the memorial thereof, and burn it upon the altar, and afterward shall cause the woman to drink the water. And when he hath made her to drink the water, then it shall come to pass that if she be defiled and have done trespass against her husband, that the water that causeth the curse shall enter into her, and became bitter, and her belly shall swell, and her thigh shall rot, and the woman shall be a curse among her people. And if the woman be not defiled, but be clean, then she shall be free, and shall conceive seed. This is the law of jealousies. When a wife goeth aside to another instead of her husband, and is defiled, or when the spirit of jealousy cometh upon him, and he be jealous over his wife, and shall set the woman before the Lord, and the priest shall execute upon her all this law, then shall the man be guiltless from iniquity, and this woman shall bear her iniquity. Chapter 6. The law of the Nazarite in his separation, the form of blessing the people. First verse. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When either man or woman shall separate themselves to vow a vow of a Nazarite, to separate themselves unto the Lord, he shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat moist grapes or dried. All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree, from the kernels and even to the husk. All the days of the vow of his separation there shall no razor come upon his head, until the days be fulfilled in the which he separateth himself unto the Lord. He shall be holy, and shall let the locks of the hair of his head grow.
All the days that he separateth himself unto the Lord, he shall come at no dead body. He shall not make himself unclean for his father, or for his mother, for his brother, or for his sister, when they die, because the consecration of his God is upon his head. All the days of his separation he is holy unto the Lord. And if any man die very suddenly by him, and he hath defiled the head of his consecration, then he shall shave his head in the day of his cleansing. On the 7th day shall he shave it, and on the 8th day he shall bring 2 turtles or 2 young pigeons to the priest to the door of the tabernacle of the congregation. And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, and make an atonement for him, for that he sinned by the dead, and shall hallow his head that same day. And he shall consecrate unto the Lord the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering. But the days that were before shall be lost, because his separation was defiled. And this is the law of the Nazarite. When the days of his separation are fulfilled, he shall be brought unto the door of the tabernacle of the congregation, and he shall offer his offering unto the Lord, 1 year lamb of the first year without blemish for a burnt offering, and 1 year lamb of the first year without blemish for a sin offering, and 1 ram without blemish for peace offerings, and a basket of leavened bread, cakes of fine flour mingled with oil, and wafers of unleavened bread anointed with oil, and their meat offering and their drink offerings. And the priest shall bring them before the Lord, and shall offer his sin offering and his burnt offering. And he shall offer the ram for a sacrifice of peace offerings unto the Lord, with the basket of unleavened bread. The priest shall offer also his meat offering and his drink offering. And the Nazarite shall shave the head of his separation at the door of the tabernacle of the congregation, and shall take the hair of the head of his separation and put it in the fire which is under the sacrifice of the peace offerings. And the priest shall take the sodden shoulder of the ram, and 1 unleavened cake out of the basket, and 1 unleavened wafer, and shall put them upon the hands of the Nazarite after the hair of his separation is shaven. And the priest shall wave them for a wave offering before the Lord. This is holy for the priest, with the wave breast and heave shoulder, and after that the Nazarite may drink wine. This is the law of the Nazarite, who hath vowed, and of his offering unto the Lord for his separation, beside that his hand shall get according to the vow which he vowed, so he must do after the law of his separation. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them, The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. इन्हीं वचनों को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। गिनती की पुस्तक 5 अध्याय 6 अध्याय। गिनती की पुस्तक 5 अध्याय 6 अध्याय BSI बाइबल में से। अशुद्ध मनुष्य 5 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि
वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेय हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो, उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच मैं निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इस्राएलियों ने वैसा ही किया। क्षतिपूर्ति का नियम 5 वचन से आगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरी क्षतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो, और वह उस प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाए वे उसी की हो। सब मनुष्यों के पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे। कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। व्यभिचार की जांच 11 वचन से आगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्न बलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे, और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, तो और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए, और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करे, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे आमीन आमीन। तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलन वाले अन्न बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्न बलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए, और जब वह जल पिला चुके तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का
विश्वासघात किया हो तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। नाजिरों की व्यवस्था 6 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजिर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्याय करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाख मधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक यह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाजिर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा और अखमीरी रोटियों की 1 टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियाँ और उन बलियों के अन्न बलि और अर्घ ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। इन सबको याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके तब याजक मेढ़े को पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से 1 अखमीरी रोटी और 1 अखमीरी पपड़ी लेकर नाजिर के हाथों पर धर दे, और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजिर दाख मधु पी सकेगा।
नाज़िर की मन्नत की, और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। याजकों के आशीर्वाद देने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे पिता परमेश्वर वचन की गहरी बातों में पिता हमको लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचन के गहरे दोस्ती हमने मांगी है खुदा, और तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो हमें इतने गहरे गठबंधन में लेकर आएगा वचन के कि हम पिता उसका बयान भी नहीं कर पाएंगे। इतनी गहरी दोस्ती वचन के अंदर हमारी हो जाएगी खुदा। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। तो विश्वास योग्य है, तेरे विश्वास योग्यता का प्रमाण हर बार हर समय तूने हमें दिया है पिता। तुझे धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 22 चैप्टर 11 वर्स से 30 वर्स, सैम्स 46 चैप्टर 47, 48, 49 चैप्टर। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 11 वचन से 30 वचन तक। भजन संहिता 46 अध्याय से 49 अध्याय तक। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम अकेले में बैठकर पढ़ना है, ताकि परमेश्वर हमारे साथ बात कर सके, हमें सुधार सके, हमारे अंदर वो जो कुछ भी बदलाव करना चाहता है उसको हम ग्रहण कर सकेंगे, हम उसे स्वीकार सकेंगे। ज़रूरी नहीं सभियों ने अकेले में अपने पर्सनल व्यक्तिगत समय में ही पढ़ना चाहिए। आपको जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है वैसे आप पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है, हमने परमेश्वर के आत्मा से सीखना है वचनों को, और निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा हमें वचनों में फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।